Class, today I'm going to tell you about calculation of national income. National income, it is calculated by three methods. Okay, number one is production method or product method, or it is also called as value added method. Number two, income method, and number three is expenditure method. So first video belongs to value added method. Value added method, also known as product method. As I told you in my last video belongs to national income, that was related to conversion. Under conversion, we have to assume one single item like GDP-MP, and from the GDP-MP we have to calculate 7 other aggregates. Now in this video I am telling you about how GDP-MP is calculated. Okay, क्लास वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना, कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में जो आप लोग को बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडेड मेथड. देखो यहाँ पर एक नंबर लिखा है 3. 3 belongs to 3 basic items. 3 basic items, that means these are those items, by adding these items we get some type of domestic income. अब वो कौन सा domestic income निकलेगा? Either it may be a GDP-MP, either it may be a NDP-MP और NDP-FC, किसी भी एक टाइप का domestic income बन के तैयार होगा. और ये चीज आप लोग को पता चलेगी कि किस मेथड में कौन सी चीज निकल के आती है, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा. There are 3 items, 3 basic items. By adding these 3 basic items under this method, we get GDP-MP. Why GDP-MP? इसके लिए तो भाई एंड तक देखना पड़ेगा आपको. These items are value added in primary sector plus value added in secondary sector plus value added in tertiary sector. These are the 3 items. Value added, as we know that there are 3 types of economic activity, 3 types of sectors working in an economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector. What is the value added made by all these sectors together called as GDP-MP. GDP-MP निकल के आता है इस मेथड में. क्यों और ऐसा क्या है, वैल्यू एडेड क्या है, ये सारी बातें आप लोग को समझनी है. नाउ टेक एन एग्जांपल. आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट इज वैल्यू एडेड. वैल्यू एडेड का मतलब कितना वैल्यू ऐड किया किसी भी एक सेक्टर में. तो इसको जानने के लिए let me take an example like sugar cane produced by farmers, purchased by sugar mill. Okay, at present MSP for sugar cane is rupees 250 per quintal. 100 किलो, एक क्विंटल शुगर केन की कीमत 250 रुपए है. This sugar cane is purchased by sugar mill for the production of sugar. Okay, तो ये जितना भी शुगर केन परचेज किया शुगर मिल ने, जिससे वो शुगर क्रिस्टल्स बनाने का काम करेंगे, एक क्विंटल शुगर केन के इस्तेमाल से वो नियरली 25 किलोग्राम शुगर बना के तैयार करते हैं. ठीक, मान लेते हैं शुगर का रेट मार्केट में चल रहा है 30 रुपीज. वैसे तो ज़्यादा का है, एज्यूम कर लिया 30 रुपीज. 25 किलोग्राम शुगर, 250 रुपए के रॉ मटेरियल एज अ शुगर केन रॉ मटेरियल से उन्होंने 25 किलो शुगर बना के तैयार किया, जिसको मार्केट में बेचने जा रहे हैं 30 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग. तो 25 इंटू 30, 25 3 75, 750 रुपीज. 250 रुपए के रॉ मटेरियल को
750 रुपए के फिनिश्ड गुड में तैयार किया शुगर मिल में. वैल्यू एडेड इज ₹500. Value of output, that means value of sugar, which is 750 rupees. For the production of 25 kilogram of sugar, they use 1 quintal sugar cane costing ₹250. यानी 750 रुपए का वैल्यू ऑफ आउटपुट. आप इसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 250 rupees. Difference of these two is ₹500. 500 is the value added. ओके तो वैल्यू एडेड को निकालने का तरीका वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी जितने रुपए का सामान बन के तैयार हुआ उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितना था. नाउ वन मोर थिंग, इंटरमीडिएट गुड. व्हाई इंटरमीडिएट गुड इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट? आंसर इज सिंपल, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड. 750 रुपए में 250 रुपए का जो शुगर केन है उसकी वैल्यू शामिल है, इसलिए 250 रुपए का जो शुगर केन है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट था, शुगर प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. ओके okay plus so intermediate cost the raw material which is used in the process of production is treated as intermediate cost, whereas the remaining raw material which is not used during the year is treated as inventory investment. First of all, everyone knows that. आपको ये ध्यान रखना है, जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हमने प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कर लिया, जैसा भी एग्जांपल आप लोग को दिया शुगर केन का, शुगर केन ढेर सारी खरीदी है शुगर मिल ने, जिस शुगर केन का इस्तेमाल प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए हो गया है इट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कॉस्ट, एंड द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ शुगर केन इज ट्रीटेड एज intermediate consumption. Sorry, not intermediate consumption, it is called as inventory stock. Okay, inventory stock means it is part of investment, inventory investment, which is included in the estimation of GDP. But the value of intermediate cost is not included while estimating GDP, because under the value of final good, value of intermediate consumption is always reflected. तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ है उसकी वैल्यू को हम लोग माइनस कर देते हैं. अदरवाइज अगर शुगर केन की वैल्यू को हम लोगों ने जो शुगर केन प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया है, अगर उसकी वैल्यू को भी हम जीडीपी में शामिल करें और उसके बाद पूरे के पूरे शुगर की वैल्यू जो 750 रुपीज अभी बताया, अगर इसको भी हम शामिल कर देते हैं तो भाई शुगर केन की जो 250 रुपए कीमत थी वो तो 2 बार आ गई ना, शुगर के अंदर भी उसकी कीमत आ गई और शुगर केन के तौर पे भी ले लिया. डबल काउंटिंग, जिससे हम लोगों को जीडीपी का गलत अंदाजा होगा, इसलिए हम लोग को इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना पड़ता है. जीडीपी एमपी, बाय एडिंग दीज 3 वी गेट जीडीपी एमपी. तो अभी ये भी बताएंगे जीडीपी एमपी ही क्यों आता है. Now, first of all, value added. How we calculate value added? Value added. कितनी वैल्यू हमने ऐड की? Value of output minus intermediate consumption. ठीक, जितने रुपए का हमने सामान बना के तैयार किया है उसमें कितना रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल किया था जिसको हम परचेज करके लाए थे मार्केट से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वन मोर थिंग, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन बिकॉज इट इज नॉट अ रॉ मटेरियल. मशीनरी इज अ कैपिटल गुड. रॉ मटेरियल का मतलब जो कच्चा माल हम लोग सामान को प्रोड्यूस करने के लिए
या फाइनल गुड को बनाने के लिए जो लेके आ रहे हैं वही है केवल। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये कैसे पता चलेगा? टू नो द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, it refers to sales plus change in stock. Okay, value of output का formula है sales plus change in stock, whereas change in stock it refers to closing stock minus opening stock. अब आपको समझनी सारी चीजें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ही क्यों, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्यों नहीं? तो भाई शायद पहले भी पिछली वीडियो में भी इस चीज को बता चुके थे, लेकिन एक बार फिर से, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, दैट मींस द स्टॉक ऑफ गुड्स व्हिच इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, जो साल की शुरुआत में हमारे पास था ओपनिंग स्टॉक, कंफर्म है ये सामान हम लोग लास्ट ईयर बना के तैयार कर चुके थे। अगर सामान लास्ट ईयर बन चुका है तो कंफर्म है लास्ट ईयर ये क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर की जीडीपी में आ चुका होगा। करंट ईयर में जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, कंफर्म है हम सबसे पहले उसे बेचने का काम करेंगे। दैट मींस ओपनिंग स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल्स, बेचने का काम हम इस साल कर रहे हैं। जब हम पूरी सेल्स की वैल्यू को लेने का काम कर रहे हैं, दैट मींस इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो कि पिछले साल का प्रोडक्शन है। ठीक, पिछले साल अगर एक बार जीडीपी में आ चुका था, करंट ईयर में हम कंप्लीट सेल्स अगर लेने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक और इस साल का ओपनिंग स्टॉक था, उसकी वैल्यू सेल्स में शामिल है, हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल की जीडीपी में आ चुका है। अगर हम सेल की वैल्यू को पूरा का पूरा लेते हैं, दैट मींस जो ओपनिंग स्टॉक इस साल है या जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, डबल काउंटिंग हो जाएगी उसकी, लास्ट ईयर वाली में भी और इस साल की में भी। इसलिए सेल्स में से जब हमारे पास फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो इसका मतलब है सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, लिखते हैं यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स, सेल्स जितना भी हम लोग इस साल सेल कर रहे हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक शामिल है, इसलिए इस ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दें क्योंकि ये पिछले साल प्रोड्यूस हो चुका था। क्लोजिंग स्टॉक को ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई क्लोजिंग स्टॉक तो सेल्स में शामिल था ही नहीं, लेकिन हमने करंट ईयर में प्रोड्यूस कर लिया है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करो। नाउ इट इज क्लियर, ध्यान से देखो, चेंज इन स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखने का काम कर रहे हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मींस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो अब यही वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी वो रॉ मटेरियल जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए किया, इसकी वैल्यू को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है वैल्यू एडेड। नाउ किसी भी सेक्टर का वैल्यू एडेड, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर का वैल्यू एडेड हम लोग इसी तरीके से हमेशा निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या क्लियर करके चलो इसको भी लिख देते हैं, अदरवाइज द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वी कैन से दैट वैल्यू एडेड इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये दोनों मिला के हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, तो ये जो वैल्यू एडेड आ रहा है एक्चुअली में ये है आपका, इट इज GVAMP, इट इज GVAMP और GDPMP। जो GVAMP हमारा है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इट इज इक्वल टू GDPMP, क्योंकि सारे सेक्टर्स का जब हम लोग, ये तो किसी एक सेक्टर के लिए है, GVAMP जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी एक सेक्टर के लिए है, जब सारे सेक्टर के वैल्यू एडेड हम ऐड कर लेंगे तो वही GVAMP कन्वर्ट हो जाएगा हमारा GDPMP में। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई GDPMP। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस,
This method is related to production activities. Production activities leads to engagement of fixed factor. ठीक, फिक्स्ड फैक्टर को जैसे जैसे हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगातार इस्तेमाल करते हैं, दे में गेट डेप्रिशिएटेड. ओके, और अगर चीज डेप्रिशिएट हो रही है तो प्रोड्यूसर सेलिंग प्राइस में हमेशा जितनी मशीन उनकी डेप्रिशिएट हुई है उस मशीन की कॉस्ट को शामिल करते हैं. तभी तो आप लोगों ने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड वाला टॉपिक पढ़ा. जितना भी पैसा, जितनी भी उनकी मशीन डेप्रिशिएट हो रही है उसके लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को मेंटेन करने का काम करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ठीक, अगर वो इसे मेंटेन नहीं करेंगे तो भाई जीडीपी हम लोग की बर्बाद हो जाएगी कुछ सालों के बाद. प्रोडक्शन एक्टिविटीज बंद कर देना पड़ेगा अगर हम मशीनरीज को चेंज ना कर पाए. तो इसका सीधा सा मतलब है प्रोडक्शन जो भी हम कर रहे हैं इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड है. अगर आपके आंसर में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है then it is called as gross concept. That's why answer comes in gross concept G. Okay, now all the three sector belongs to within the domestic territory. That's why answer comes in domestic. और साथ ही साथ YMP प्रोडक्शन एक्टिविटीज प्रोड्यूसर कर रहा है, फैक्टर कॉस्ट उसने लगा दी, लेकिन प्रोडक्शन करते ही उस पर जीएसटी गवर्नमेंट लगा देती है जीएसटी. दैट मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस उन पे लगा दिए जाते हैं. इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लीड्स टू आंसर इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस. दैट्स व्हाई अंडर वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, by adding all the three value addeds of different sector we get GDP MP. If you have any doubt you may ask by calling me or by sending some messages. तो भाई जैसे जैसे आपको वीडियोस चाहिए, अगर आपको चाहिए वो लगातार, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, और बेल आइकन अगर ऑन कर दोगे तो भाई पता चलता रहेगा आपको कौन कौन सी वीडियोस अपलोड हुई है. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.